and you went by and you never leave what you love to do. So this is what is carrying you. मतलब एक passion को follow करना लोग कहते हैं कि difficult है. For example, I am a chartered accountant and to work as a trainer, to work as a motivational speaker is my passion. So yes, I have faced that problem कि passion को follow करना उतना easy नहीं है जितना लोग कहते हैं. तो आपका क्या take है इसके ऊपर? आपके क्या challenges थे? Being an interior designer and working as a dancer, boogie woogie winner, then having your own studio. So how the journey has been? Even today, there will always be, as I said, your confidence will keep shaking. It is not a concrete thing. ये जो confidence है, ये बहुत ही नाजुक चीजों से बना हुआ है. It shakes easily. So even today, if you tell me कि आपको अचानक ये कोरियोग्राफ करना है, तो ऐसा लगेगा कि मुझे डांस आता भी है. So your confidence can be so, कि एकदम कि कहाँ है, हम कौन है. But then, as I said, कि आने से हो जाता है. But God has been grateful कि God has been grateful कि I could manage to make a studio of my own. I could live so many of my dreams. मतलब हर डांसर का एक ड्रीम होता है कि मेरी खुद की डांस स्पेस हो, मैं ऐसे उड़ूं, ऐसे नाचूं. I would run and I would dance and twirl and swing in my own space. And God has been kind कि I could live my dream. मैंने ये किया, but it took me many years. मैंने काफी साल, 15 years I must have spent in rented properties, and then we gathered the courage to buy a property for my dance studio, and now this is my own space. And I love कि भाई this is a little achievement, and I try to do my best because overall I see, मैं ऐसा देखती हूँ मेरे केस में कि I love dancing. ठीक है, my dance can be outdated, with the time you need to, as you said कि आपने अपने आप को अपडेट किया है, तो आज के अभी जो 20s के गर्ल्स डांस करते हैं वो हम भी कर रहे हैं, एंड उसी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं, या वी आर लेंडिंग आवर विजन टू द न्यू डांसर्स, या जो भी है. सो एंड change is another thing that you have to accept and acclimatize with. Like, change is the only constant, we all know. So what kind of change? Like, as a younger person, I used to do a lot of disco. I used to wear more of western dresses. I used to wear more of western dances, and now I have tried to evolve. मतलब मैंने एक team जैसा create करने की कोशिश करी है जहाँ पे younger girls can do western. I look at the Indian dances more often, and we've divided the work, and I try to do what suits me now at this point in time. आज के हिसाब से मुझ पे क्या सूट हो रहा है, how we all change, our look changes, our body is constantly changing, our attire changes, our tastes change. Similarly, हम सभी changes के लिए ही बने हैं. We are changing from a 2-year body to a 20-year-old body to a 40-year-old body, and our mind is also changing. So just keep accepting the changes and try to do at this particular age आपको क्या करना है. जैसे कि मैं devotional dances करती हूँ. So not even हेमा मालिनी जैसी ग्लैमरस हीरोइन को मैं देखती हूँ कि कहाँ उन्होंने एकदम she used to be the dream girl, and then there came a point where she took to devotional dances. So it is always a very positive transition. एंड अगर आप ये पॉजिटिव ट्रांजिशन खुद ही अच्छे से ले लेंगे तो लोग भी आपको बहुत अच्छे से स्वीकारते हैं, एंड यू फील फुलफिल्ड, यू फील गुड अबाउट योर अकम्प्लिशमेंट्स, rather than people trying and telling you at your age, yeah, this is not suiting you. So try to listen to your inner conscience, and try to listen to your inner conscience and do things that, if you want to fit into the society norms and you want to act wisely, you want to look nice, you want to look sober, you want to maintain your personality, तो आप changes को जरूर welcome करिए, embrace करिए. Great. That's again a wonderful thing that हमने सुना कि after reaching such a great height into your life, still you acknowledge the society. जो एक background में हम belong करते हैं, हमारे लिए बहुत ही important है. उसको समझना, ना कि उसके अगेंस्ट जाके कुछ करना, उसमें रह के कुछ नया देना.
So you are a perfect example for that. And I have seen many of your dance, like which was a recent upload on Karwa Chauth. I have been through that. I have been through your traditional dances like Ghumar Che Nakrali, the old Marwadi song. From every song I have seen you, and I really admire not only the dance, पर आप जो अटायर कैरी करते हो, आप जिस एक्सप्रेशन से वो डांस कर रहे हो, आई ट्रूली फील दैट डांस इज योर पैशन. जब हम वो वीडियो देखते हैं तो वी फील लाइक हम एक एक्ट्रेस को देख रहे हैं एंड शी इज जस्ट लविंग हर डांस. You are not bothered at all about the views, and you are so well dressed and everything is so perfect. So I could relate myself to you, because I जब मैंने वो डांस किया घूमर छे नखराली, so I was in a घाघरा with a dupatta on my head. So I could relate कि यार अगर रितु ऐसे कर रही है तो मैं भी ऐसे दिखूंगी, ऐसे कर सकती हूँ. You have carried a dupatta on that dance while choreographing. So I thought it would look perfect on the घाघरा. So well answered that you fit into that liquor, that ceiling जो जहाँ पे आप बहुत ही अच्छे से presentable हो. So that's a perfect answer for that. Moving ahead, Ritu, I'm asking you a question कि what is the strength you feel you have within yourself? एक ऐसी क्वालिटी which made you go so long into your life. आपकी बचपन का कुछ ऐसा है कि आप बचपन से ये करते आए हो, या आपकी एक हैबिट है जिससे आप बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहे हो, जो आपके लिए बहुत ही अच्छी रही? अच्छा, सी पहले तो मुझे भी नहीं पता था मेरे अंदर क्या क्वालिटीज हैं, बट अब मैं जब इफ आई कैन लुक एट माय ओन जर्नी फ्रॉम अ डिस्टेंस, look at my work, I would say I am blessed with a certain amount of creativity, originality, and I have some boldness. I am not a timid person. So मुझे कोई ऐसी कुछ भी कि I get carried away कि मतलब I have my own set of beliefs, and मैं उसको लेके आगे बढ़ती हूँ. And most of the time I डिक्टेट इन द सेंस कि मैं ही ये बताती हूँ, मुझे लग रहा है कि इतने सालों से कि अब हमें ये करना चाहिए, अब हमें ये करना चाहिए. आई डोंट लुक फॉर पीपल्स ओपिनियंस, रादर पीपल लुक फॉर माई ओपिनियन. तो इसमें एक स्ट्रेंथ मुझे मिलती है कि हाँ, कि आई एम कॉलिंग द शॉट्स. सो कॉलिंग द शॉट्स, आइडिया जो बोलते हैं ना कि आइडिया हर चीज का बाप होता है, तो आइडिया तो आना पहले, फिर देयर विल बी पीपल हुम यू कैन. बट मुझे ये भी अच्छा लगता है कि मैं टीम को साथ में लेके चल पाती हूँ. सो आई हैव tried to develop a larger heart for others also. and उसमें बहुत सारी चीजें, we all know कि टीम को साथ में लेके चलने में बहुत 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 सारी sacrifices and बहुत सारी, it is a challenge in itself. and you should know, because वो लोग हैं जो तुमको देख के एडमायर करके तुम्हारे पास आए हैं. they are seeking a lot of things from you. they are looking at you as an icon. they are looking at you for their journey, for their growth also. तो आपको simultaneously अपने साथ साथ उनको भी आगे ले जाने का एक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो उस आप उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेके मैं आगे चलती हूँ कि इसमें थोड़ा फ्रिक्शन आते हैं साथ में चलने में. जैसे आप कभी चल के देखेंगे, आप 5 जने साथ में चल रहे हैं तो केवल चल रहे हैं, उसमें भी कभी कोई आगे होगा, कोई पीछे होगा, कोई हाथ छूटेगा, कोई हटेगा. चलने में एक ज्यादा स्ट्रगल है. अकेले चलते जाओ, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है. यू आर नॉट, किसी को आप साथ लेके नहीं चल रहे हो, बट आप साथ में चल के देखिए. सो जो फिजिकल एक्सपीरियंस है साथ में पकड़ के होल्ड ऑन करके साथ में चलने का, उसी को आप विजुअलाइज करिए कि इस पूरे करियर पाथ पे हम साथ चल रहे हैं. सो उसमें कितना सबको साथ में कदम से कदम मिलाने के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा. सो वो पूरी एडजस्टमेंट के साथ भी आई इंजॉय दिस कि आई हैव बीन एबल टू डू दिस. इट इज एन अकम्पलिशमेंट. आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं अपना डांस इतने लोगों में बांट चुकी हूँ. इतने लोगों ने जैसे आपने आज कहा, वैसे बहुत लोग, ऑल दिस हैज बीन अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस मोटिवेशन फॉर मी कि आई गेट थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स जो लोग अप्रिशिएट करते हैं हमारे डांस को, हमारी ड्रेसिंग को. तो दैट गिव्स मी सम मोर मोटिवेशन टू स्प्रूस अप माय वार्डरोब. एंड इट इज ऑलवेज लाइक दैट. सारे यूट्यूब क्रिएटर्स या कोई भी सोशल मीडिया स्टार जब होते हैं, कोई किसी को फॉलोइंग मिलती है, सो इट इज बिकॉज ऑफ सम पर्टिकुलर ट्रेट.
हमारा कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंसर का देयर इज सम वैल्यू इन द इन्फ्लुएंसर विच इज attracting them. So it is not something that you can always आप बिल्डअप कर देंगे हमेशा. यू आर ब्लेस्ड विथ सर्टेन थिंग्स जिससे आपने रिकॉग्नाइज किया है, आपकी स्ट्रेंथ है वो, एंड दैट इज हाउ यू आर शेयरिंग दैट विद द वर्ल्ड एंड पीपल आर लाइकिंग यू फॉर दैट. सो मेरा पर्टिकुलर डांस एंड ड्रेसिंग स्टाइल ऑलरेडी आई हैड this blessing, and then I'm trying to put it to add value to common people कि मैं ऐसे 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 करके दिखाती हूँ आपको, तो कई लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ जैसे right from dressing to how we execute it, and then probably there are so many people who are my inspiration also. So life is led by example. ये तो ऐसे ही चलता आया है ना. जैसे राज कपूर को लोग देखते थे, फिर शाहरुख खान को देखेंगे, फिर इनको देखेंगे, उनको देखेंगे, एंड देन वी ऑल हैव सो मेनी ड्रीम्स इन आवर आईज कि हम खुद भी बने हुए शाहरुख खान. सो व्हाई नॉट. Great, great. रितु मैम, मूविंग अहेड, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन नाउ कि क्या प्लान है आपका फ्यूचर के लिए, यू नो वेयर यू आर हेडिंग टुवर्ड्स नाउ? Is it about becoming a Bollywood choreographer, or producing your own movie, coming up with a autobiography movie on your name, anything? What you are heading towards? None of these. None of these. None of these. Okay, none of this. So I am most probably heading towards the spiritual path, and ऐसा भी होता है. It is not about career, and you know how much can you like. आप सुंदर देख रहे हैं, आपको किसी ने अप्रिशिएट किया, 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, what beyond? उसके बाद क्या? उसके बाद आप शायद उसमें खुशी नहीं मिलती. आप उस अप्रिसिएशन में नहा के what next? So you have to be useful to the world. You know, we all are. Why are we traveling? Why are we in the first place? ये journey ही क्यों है? So we have not yet realized, you know, I have been a very very small medium कि मेरे माध्यम से dance का probably ये you know कि मेरा अपना take on dance केम कि नहीं तो ऐसा होता था कि भरतनाट्यम है, ओडिसी है, क्लासिकल है, कथक है, बट ये जो सेल्फ इवॉल्व फॉर्म ऑफ डांस है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो व्हाट आई यूज्ड टू बिलीव कि ये डांस है, वो मैंने लोगों के सामने लेके आई हूँ, एंड कई लोगों ने उसे एम्ब्रेस किया, एंड कई लोगों ने उसे ही रेप्लिकेट किया. एंड ऐसा नहीं है कि मुझे ही देख के, बट सिमिलरली बहुत सारे लोग कर रहे थे. जैसे गोविंदा ने एक अपनी स्टाइल, दैट वाज हिज वे ऑफ showing his dance, and that is appreciated and loved by so many. So we all are have our roles to play. तो हम यहाँ एक रोल अदा करने आए हैं. अगर हमने अच्छे से वो रोल अदा किया है, so that is something sense of fulfillment for all of us. वो तो है ही. अब इसके बाद क्या, like बड़े बड़े glorious careers होते हैं. So we all know how where to start, when to start, why to start, but we never know. We don't try to find when to finish, how to finish, why to finish. So it is my own personal journey कि मुझे कोई बॉलीवुड का डांसर नहीं बनना है. बट वन थिंग इज फॉर श्योर, आपके प्रश्न का जवाब ये दूंगी कि मैं मरते दम तक डांस करना चाहती हूँ. अब चाहे भक्ति भाव में करूं, चाहे किसी भी भाव में करूं, या मजे के लिए भी. इवन टुडे इफ यू सी माय डांसेस, इवन रिसेंट वन कल ही इंस्टाग्राम पे, तो हमने मनी के हिते भी करा, एंड साथ ही साथ हम लोग अलबेला सजन भी कर रहे हैं, तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो. सो भक्ति में भी कर रहे हैं, एंड ये एंटरटेनमेंट रस में भी हम लोग कर रहे हैं. दोनों तरह का डांस, whatever suits me, what music stirs me. मतलब म्यूजिक इज समथिंग दैट स्टर्स द सोल. कई लोग एकदम वो बेसिक सा सवाल पूछते हैं कि आपको ऐसे कैसे पता चलता है कि इस पे ऐसा स्टेप करना है, मतलब आपकी बॉडी इस पर्टिकुलर वे में ऐसा एक स्टेप फॉर्म करती है, ऐसा कैसे? सो दैट आई शुड टेल यू कि हम लोग देखते हैं दूसरे के वीडियो, बट ऐसा नहीं है कि वो सारे स्टेप जो मैंने किए मैंने कहीं देखे हैं. नॉट एट ऑल. आई एम द लास्ट वन टू लुक एट वीडियोस. मैं अपने आप को देखती हूँ मिरर में, एंड जो म्यूजिक मुझसे करवाता है वो मैं करती हूँ. दैट इज हाउ क्रिएशंस आर मेड. ये तो एक बहुत छोटी सी क्रिएशन है. आप बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखते हो, किसी ने सोचा आईफिल टावर बनाना है, किसी ने सोचा ताजमहल बनाना है. सो एक ब्लूप्रिंट उनके दिमाग में आई, एंड फिर वो लोग उसे कहाँ कहाँ तक ले गए, कहाँ कहाँ तक ले गए. सो क्रिएशन की तो मतलब हद ही है. हम तो एक जर्रा है, एक स्पेक है. मैं तो आई एम नॉट इवन अ पार्टिकल ऑफ डस्ट. So life has been, people have been so creative, so mind-boggling
कि आप अगर उनके साथ कंपेयर करेंगे तो आप अपने आप को कहीं नहीं पाएंगे। तो हम बस ये देखेंगे कि हमने क्या कंट्रीब्यूट किया है, उससे अधिक क्या कर सकते हैं। सो अब आगे का जर्नी यही है। एंड मेरे एज ग्रुप में जो लोग होंगे, people who've had 20 years of a good career should really think what next. So you just don't want to stuff yourself with more, right? Now we have to give back to society. A beautiful answer, ma'am. A beautiful answer. You know, out of this whole interview, this has touched my heart. कि सबको ये पता होता है शुरू कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, बट एंड कैसे करना है, देयर आर एग्जांपल्स ऑफ दैट. एंड अ बिग इंस्पिरेशन हैज बीन सुधा मूर्ति. शी न्यू कि काफी करियर हो गया है, नाउ आई वांट टू मूव टुवर्ड्स philanthropist. Now I see a next role model, that Ritu ma'am, being a choreographer, dancer, heading towards spirituality in any form, you know, you pursue that. Because एक point के बाद हो जाता है कि अब और क्या चाहिए, you have everything, you know, you don't need anything more. अब आपको और कोई satisfaction मिल ही नहीं सकता है, rather you contribute something, or you move towards spiritual path to, you know, enhance your soul, to grow your soul. So beautiful answer, ma'am. Moving towards के आपकी क्या सलाह है, that you have been a woman who had started her career after children's, after marriages. So I see many women, especially I work with women who are not working in spite of having qualification, in spite of having that calling kuch karna hai. I even see many people, many women are housewife और वो उस काम को enjoy नहीं करती है. मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि whenever I see a woman, I feel that she is not happy. आप हाउसवाइफ बन के भी खुश रह सकते हो, बट आई सी मेनी वुमेन्स, दे आर हाउसवाइफ बट दे आर नॉट हैप्पी, दे आर वर्किंग बट दे आर नॉट हैप्पी. सो एक आप क्या सलाह देना चाहोगे वुमेन्स को जो नॉन वर्किंग है, उनके लिए सबसे पहले तो क्या सलाह होगी, जो अपना एक पैशन रखती है पर नॉन वर्किंग है, तो आप क्या सलाह देना चाहोगे कि वो कैसे अपने पैशन को फाइंड आउट करे, कैसे वो स्ट्रगल्स को ओवरकम करे, कैसे वो 4 लोगों को छोड़ के आगे बढ़े? व्हाट विल बी योर सजेशन ऑन दैट? See, there cannot be one concrete answer to this big question, but women are very smart today. We are not talking about when we say something about women women at large. I don't think we can include every, and we can, leave out a few. But women at large, I see are growing in intellectually, independent भी हैं, समझदार भी हैं, bold भी हैं. They are already fighting for themselves. If some women are not finding the way, it is probably उनका कुछ their laid back attitude, उनका आलस है शायद, and हम लोगों का एक एक probably we try to easily blame it on others कि मुझे support नहीं मिल रहा है, या इस तरह की हम लोग एक larger बातें कर देते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. But we do not look inside and try to find enough courage to actually go ahead and face the challenge. तो अपने आप को चैलेंज मोड में ले आइए तो सब कुछ होगा. एंड जरूरी नहीं है, आई थिंक जरूरी नहीं है कि सबको फाइनेंशियली ही इंडिपेंडेंट होके कुछ मिलेगा. सो वी ऑल हैव डिफरेंट पाथ्स, डिफरेंट जर्नीज. सो डू नॉट ट्राई टू कॉपी कि हमें भी ऐसा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए ही कुछ काम करना है. सबसे पहले बिगिन विद ट्राई टू ऐड वैल्यू. मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, आप घर में खाना भी बना रहे हैं तो वो 4 लोग खा रहे हैं, तो एक वैल्यू आपने दिया घर को, यू एडेड वैल्यू. वैसे ही आपने सफाई करी तो आपने कुछ वैल्यू ऐड किया, आप कुछ सामान लेके आए, आपने कुछ सजेशन दिए, आपने कुछ वर्किंग आवर्स क्रिएट करे, तो आपने कुछ वैल्यू ऐड करा. सो बिगिन स्मॉल. टू ऑल द वुमेन, अगर आप बहुत अच्छे कुछ आर्टिस्ट्री है आपके अंदर, कुछ कला है, कुकिंग है, कोई पेंटिंग है, कोई चीज है, सो एज अ हॉबी डोंट ट्राई टू काउंट मनी फ्रॉम डे वन. दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. सो डू नॉट ट्राई टू काउंट ऑन मनी कि आपको क्या पैसा मिल रहा है. लीव दैट. 1-2 साल के लिए आप अपने आप को विंडो दीजिए कि 1 साल 2 साल मुझे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, बट मैं आई लुक एट व्हाट वर्क आई हैव क्रिएटेड. सो ट्राई टू ऐड वैल्यू. आप अपनी नजर में देखिए कि आपने क्या कर पाए हैं. सो बिगिन डूइंग सम वर्क एंड गिव योरसेल्फ फाइनेंशियली. अपने आप को चैलेंज मत करिए, एटलीस्ट अपने आप को विंडो दीजिए 2 साल 1 साल, एंड देन सी कि क्या रिजल्ट आता है.
Great, again a superb answer. And what about working women? मतलब काफी working women होती है, they are having everything but they are not enjoying their life. उनके लिए क्या सजेशन होगा? जैसे आप डांस कर रहे हो, आप फैमिली संभाल रहे हो, बट यू आर सो हैप्पी, यू नो, इट इज विजिबल, वो आपका इंटरनली सोल खुश है, वो दिखाई दे रहा है. सो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे मैम? मैं भी दुखी होती हूँ कई बार, एंड हर लोग, सभी लोग होते हैं, बट आई ट्राई टू पुट अ स्माइलिंग फेस, एंड आई हैव अ स्माइलिंग फेस. आई डोंट नो एनी अदर वे टू पोज. So if you look at my pictures, I don't pose like this. I generally यस. pose like this, right? So I have a ट्रू. smiling face, which I just can't, I can't break. So that is one. And second is, you said working women not happy. So we do not need to categorize. Nandini, I would beg to differ यहाँ पे, कि मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि सब बहुत खुश हैं लोग. इंस्टाग्राम पे तो सब खुश खुश दिख रहे हैं, तो खुश ही होंगे. बट लोग बार बार, देर आर पीपल हु विल ऑलवेज टेल यू कि ये इंस्टाग्राम की दुनिया, सोशल मीडिया में तो सब जो वही दिखता है, लोग अच्छा ही दिखाते हैं, एंड दे डोंट शो द ट्रूथ, एंड हु वांट्स टू शो. तो ऐसा ही है ना लाइफ में, आपको खुशबू बांटनी है, आपको दुर्गंध नहीं बांटनी है. आप अच्छी चीजों से ही, यू कैन ऑफर व्हाट यू हैव. सो ओनली अ हैप्पी सोल कैन ऑफर हैप्पीनेस टू अदर्स. You can only give what you have. करेक्ट. So वेरी ट्रू. we always contribute nice things to the society. ग्रेट. मैं बहुत ग्रेट. ऐसे 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 नहीं, अच्छी अच्छी बातें, माई लाइफ हैज बीन फुल रॉकिंग, एंड ऐसी बहुत सारी वुमेन की होती है. मैंने अपने सारे आज स्ट्रगल्स शेयर ही नहीं किए, अपनी शांति शेयर करी है, पीस शेयर किया है आज के इंटरव्यू में. बट माई लाइफ हैज बीन लाइक एनी अदर करियर पाथ वाले लोगों का, कि भाई फुल रोलर कोस्टर राइड, बट एंजॉय इट एंड बिलीव इन योर सेल्फ, एंड करते रहो, रोज करो. ट्राई टू एंजॉय योर लाइफ, बी हैप्पी अबाउट इट. दैट्स द एटीट्यूड, यू नो, इट इज राइटली सेड कि प्रॉब्लम तब तक है जब तक आप सक्सेसफुल ना बन जाओ. जिस दिन आप सक्सेसफुल बन जाओगे, सारी प्रॉब्लम विल बी पार्ट ऑफ योर सक्सेस स्टोरी एज इट इज ऑफ योर्स नाउ. So that was great having interviewing you like this, having you live on our whiteboard group, ma'am. So it was a wonderful interview. बहुत सारी key learnings रहेगी लोगों के लिए. Anything you would like to add, you know, जो आप सोचते हो कि एक value addition होगा on your behalf to our viewers? To the viewers, okay. Chalo, we should. So once again, a big thanks to all of you who are watching, who've been watching us. या कभी भी आपने हमें देखा है YouTube पे, या हमारे साथ डांस किया है, स्क्रीन पे देख के हमें डांस किया है. सो आप सब ने मेरा हौसला बढ़ाया है. मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ. एंड अगर आप मुझसे कोई की लर्निंग लेना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था वही कहूँगी, कि एट एनी एज, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जस्ट ट्राई टू बी एनालाइज योर सेल्फ, कि क्या आप कुछ अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं. कंट्रीब्यूटिंग मोड में आप जो भी वैल्यू कर, जो भी वट एवर एक्शंस यू आर इनकॉर्पोरेटिंग, हैव टू बी पॉजिटिव एंड एडिंग वैल्यू टू द सोसाइटी, है ना. आप अपने लिए भी अच्छा कर रहे हैं, दूसरे के लिए भी अच्छा कर रहे हैं. ट्राई टू बिल्ड योर सेल्फ विद द राइट वैल्यूज. Great. Then again, I wanted to ask कि अब हमने जान लिया your role as a choreographer, as a dancer, as a woman who is running a studio, who is a versatile, you know, personality. But अब मैं जानना चाहती हूँ आपका role as a wife, as a mother, as a daughter-in-law, as a daughter. क्या आपको लगता है आपने ये सारे roles को justify किया है? देखिए, कहीं ना कहीं तो आई ऑलवेज टेल यू कि आपने अगर कुछ लेने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये हमने सबने सुना है ना. तो अगर आपकी मुट्ठी भरी हुई है और आपको फिर भी उसमें से कुछ चाहिए जार में से, तो आपको यू विल हैव टू लेट गो, राइट. सो वो सारा टाइम, कई बार 6 घंटे, कई बार 7 8 10 घंटे मैंने स्टूडियो को और अपने वर्क को, शोज होते थे तो उसको, अगर मैंने अपना वेकिंग आवर्स के 8 घंटे और अपना माइंड एंड बॉडी को यहाँ इन्वेस्ट किया है, तो मैंने कहीं ना कहीं कुछ तो छोड़ा है. सो वो टाइम जो मैं अपनी फैमिली को दे सकती थी, वो मैंने शायद आई बाटर्ड. I Yeah. for my role as a YouTuber, I had to give up on my role of being a hands-on mother.
So I may not have been a hands-on mother, ki always available mother, but then I became a YouTuber because I was not that. I became this. So this is also a very beautiful fact of life. Ki when we say we expect somebody to become like everything, that is not possible. तो बल्कि पर ऐसा नहीं है कि यू कुड हैव बीन अ बेटर मदर ओनली बाय बीइंग अ हैंड्स ऑन मदर कि आप अपने बच्चों के फेस के आगे मतलब आप 15 घंटे उनके साथ हो तभी आप अच्छे मदर बन सकते हो, ऐसा भी नहीं है। तो लोग कई बार छोटे टाइम में जिसे क्वालिटी टाइम कहा जाता है, तो हम अपना सारा योगदान क्वालिटी टाइम में दे आते हैं, बट देन दैट इज एन एक्सक्यूज। कहीं ना कहीं तो योर पर्सनल लाइफ आप हमेशा देखेंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, मैं फिर से कोट करूंगी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, तो उनके पास फैमिली लाइफ के लिए टाइम ही नहीं है क्योंकि उनके पास बिगर इश्यूज हैं लाइफ में, एंड ही कुड वो उनकी पहचान ही ऐसी बनी है कि कि वो पीएम है पूरे देश, तो उनके पास तो बहुत बड़े बड़े मेजर रोल्स हैं, तो ही कैन नॉट सिट एंड थिंक अबाउट हिज फैमिली। So जब आपके पास हायर रोल्स हैं तो लोअर रोल्स विल हैव टू मेक अ लिटिल सैक्रिफाइस, विल हैव टू स्टे। तो इट इज यू ऑन यू कि आप डिसाइड करें कि आपका हायर रोल, हायर पर्पस क्या है, या आपका प्रॉपर व्हाट इज गिविंग यू, यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर लाइफ एंड देन टेक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज अकॉर्डिंगली। ग्रेट ग्रेट। तो मैम ये होता होगा कि आपके बच्चे आपसे इंस्पायर्ड रहते होंगे, जैसे नॉर्मली बच्चे बोलते हैं मम्मा शी इज माय आइडल, तो वैसे आपके बच्चों के लिए आप ही एक लिविंग रोल मॉडल हो, एक वर्किंग वुमन हो, बैलेंसर हो, तो वो आपने कैसे हैंडल किया? कई बार बच्चों पे प्रेशर आ जाता है कि मॉम इतनी सक्सेसफुल है, शी इज सो हार्ड वर्किंग, तो आपका क्या पेरेंटिंग स्टाइल होता है सो दैट योर चाइल्ड गेट अ प्रॉपर, उनको एक वो स्पेस भी मिले, वो ग्रो भी कर पाए, उनकी खुद की क्रिएटिविटी लेके आए? सो व्हाट इज द डिफरेंस इन पेरेंटिंग दैट यू फॉलो हियर? It has been an easy parenting, and both my sons are adults now, and they are doing their own thing, and they truly appreciate the fact that their mother is a hardworking woman. She is a star in her own right, and she likes to believe that she is doing her own thing nicely. So it is good, and I've been dancing with my younger son on various platforms. मैंने Instagram पे भी डाले हैं उसके साथ. So people who follow me closely, they would know कि मैंने अपने बेटे के साथ भी बहुत सारे डांसेस डाले हैं. So that's about it. It's a happy-go-lucky life story, and the struggles and the sacrifices are not so much to be spoken about, at least not in the first interview. So this interview was all about happiness and peace. तो वो तो है ही, एंड आप जैसे कि हमने बार बार आपको अंडरलाइन कर रहे हैं कि keep doing your work, try to add good values to the society, and you'll always feel good about yourself. Great, great, ma'am. So thank you so much, all the viewers, for listening to this podcast, to this video, and I hope you all had a learning here. अगर आपकी कुछ भी कमेंट्स है, आप रितु मैम से और कुछ जानना चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा दिस इज एपिसोड 1 वेयर शी हैज शेयर ऑल द गुगली मोमेंट्स, अगर आपकी डिमांड आती है एंड इफ शी फील्स दैट इट इज द राइट टाइम टू गिव हर struggle stories out, we will be coming soon with that. So thank you so much, Ritu ma'am, for giving your valuable time, for giving your valuable thoughts, sharing all the stories of your life so beautiful. We all are inspired to see you like this. We wish you all the best in all the parts of your life towards your spiritual journey, and we are really happy to have a person like Ritu Gupta who is creating difference to the world. Thank you so much once again. Bye bye everyone. Thank you so much, followers. Bye bye. Thank you, Ritu ma'am. It was nice talking to you. Thank you. Same here. God bless.